जब पीडीएफ में नाम आया सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाली रैंक देखी, तो फिर मैंने कहा अब घर में 2 वर्दी वाले हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं 8 घंटे की नौकरी करता था, तो रिज़ाइन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा 8 घंटे जैसे मैं नौकरी करता था, वैसे ही मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो इस टाइम इसी स्टेज से गुजर रहे हैं, तो आई आस्क यू द मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन नेक्स्ट, ऐसा क्यों नहीं सोचा कि एमबीए कर लेते हैं या फॉरेन चले जाते हैं? वहाँ पे ऑप्शंस को ऐसे फ्रेम किया जा रहा है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी टफ लगने लगेंगे। अभी भी सिविल सर्विसेज को सीएपीएफ से थोड़ा सा ऊपर का दर्जा माना जाता है। Be it the day I called my father after getting placed into Vedanta कि अब घर में 3 कमाने वाले हो गए हैं। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जाम। आज इसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है यूपीएससी। इस एग्जाम को हर साल 5 लाख एस्पिरेंट्स देते हैं। इस एग्जाम के एक तरफ है बहुत ज़्यादा सक्सेस, खुशी, लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और एग्जाम की इस ओर है लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, डलनेस और 1 साल और तपस्या करने का माइंडसेट। आज हम इसी एक कैंडिडेट से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ना केवल ये एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन उनकी है ऑल इंडिया रैंक 61। तो आज हम बात करेंगे प्रतीक वर्मा से। स्टे ट्यून, एक कॉन्वर्सेशन बहुत एक्साइटिंग है, तो प्लीज कंटिन्यू टिल द एंड। Okay, hi Pratik. You have successfully cracked the CAPF exam. So we're here to talk about the journey, but more importantly, आज के बच्चे कितना प्रिपेयर करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं, तो योर एडवाइस वुड बी सो हेल्पफुल फॉर देम। सो यही सब चीज़ों में बात करेंगे इस बारे में। कैन यू प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ? Thank you, Pooja ma'am, for giving me this opportunity of sharing my experiences and the hardships that I have gone through this preparation. So I was fortunately able to crack the UPSC CAPF Assistant Commandant Examination 2024 one. My journey has been quite an eventful one, I would say. मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी रायपुर से किया हुआ है इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. सो आई हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. Then I was able to secure a job in college campus placements itself in Vedanta Aluminum and Power. I was working as assistant manager over there. I worked there for around 1 year and 2 months or 1.5 years. COVID struck, life changed, and unfortunately, I decided that I now need to start preparing for civil services as well as CAPF assistant commandant examinations. So I gave the both the examinations of 2022, 23 and 24 cycle, as I was always targeting for uniformed forces. So thankfully, with the grace of God, I am able to sit over here in front of you today and share my strategy. Thank you so much. As an engineering student, we have some options in front of us. We can do job, we can start our own business. Tell me why metallurgy and what you didn't like about that particular field that made you look into something and say, maybe there is something more I can do in life. Yes. So, ma'am, actually, while we are preparing for JEE exams, there are a system of ranks over there. So, metallurgical engineering wasn't something I was aspiring to do, but I was always targeting a good college in which I can get enrolled into. Mm-hmm. So, according to my marks and the rank that I got in the counseling, I was able to get NIT Raipur and that metallurgical engineering. But I don't think that there is any wrong with the branch itself. It's a great branch. It's one of the oldest branches in India, along with mining engineering. And in fact, the pillars of our economy and industry is standing upon these two core sectors, in fact. But I tried my knowledge in the core sector itself after I got placed. I thought that if I have learned some subject for 4 years, I should at least get into the practical side of things. I also did my internships in DMRL, DRDO, Bhilai Steel Plant, etc. I also went to China for studying renewable energy during my college days. So I was always that curious kind of person. So I tried to study more into the metals by getting into Vedanta. Mm-hmm. After a year, there was quite a stagnation in the job. The learning cycle seemed repetitive. There was nothing new to learn over there. Moreover, I am the sole son of my parents, and I was working in Jharsuguda, Odisha, and they are back here in Lucknow. Mm-hmm. So during COVID, I was also concerned about them. Mm-hmm. So I decided that this is the right time to quit a job and get into studying side of things, because age was also catching up, and with time you don't have much attempts left, and the pressure also starts creeping. Yeah. So that was the whole story behind it.
टोटली अंडरस्टैंडेबल एंड इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो इस टाइम इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। तो आई विल आस्क यू द मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन नेक्स्ट, ऐसा क्यों नहीं सोचा कि एमबीए कर लेते हैं या फॉरेन चले जाते हैं? Ma'am, MBA is a great, I think, side of exploring your managerial side of things. I was also part of the entrepreneurship cell where I was working as the overall coordinator. I enjoyed managing people. We had a team of around 103 to 105 people over there. It's actually a great job to do MBA, but it solely lies upon your interest, I guess. My interest wasn't into studying a subject and then going into the corporate world back again. That's the thing. I wanted to do some public service, get delve into national security. That was my sole goal after I resigned. And coming to your second question, if I remember, you asked that. Could you please repeat what was the second question? Yeah, why not go to foreign abroad? Yeah, yeah. Ma'am, I think so that we should not participate in brain drain, if you may say. Mhm, Many of my friends are in foreign countries like USA and UK. They are going doing pretty well. But mhm, I always wanted to improve my own country. There are mhm, many problems in our country, no doubt. mhm, Every day we are improving mhm. inch by inch, step by step, and I wanted to be a flag bearer in that, if not the leader in that. बिल्कुल, So that was my objective. बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। तो जर्नी की बात करते हैं, आपने एक जॉब छोड़ के यू डिसाइडेड कि अभी मैं पढ़ाई करूँगा, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, प्लस यू आर लूजिंग दैट मनी दैट यू आर नॉट अर्निंग, प्लस उस टाइम पे ये भी नहीं पता होता कि कितने साल के बाद यू आर गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द टनल। तो व्हाट वाज़ योर माइंडसेट एंड कैन यू टॉक टू अस अबाउट सम चैलेंजेस दैट यू आर एक्चुअली द थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं दैट मेक यू डाउट योरसेल्फ, तो वो क्या डाउट्स आते थे? एब्सोल्युटली मैम, ये जर्नी जैसे मूवीज और टीवी सीरीज़ेस में दिखाई गई है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी वार्न एवरी एस्पिरेंट हू इज गोइंग टू गेट इनटू दिस फील्ड बिफोरहैंड ओनली कि आपको ज़रूरी नहीं कि सक्सेस मिले। CSE के एग्जाम में मोर देन 6 लाख पीपल अपीयर एंड आई डोंट थिंक मोर देन 1000 गेट सक्सेसफुल एवरी ईयर। सो यू कैन सी द रेशियो। Even if you bet on a horse race, I guess there are better chances of succeeding in that. In CAPF as well, more than I think so 1.5 lakh students appear, and then the success ratio is only 400, 500 candidates every year. Yeah. So these prestigious exams have their own downsides, and challenges are always going to be there. Mhm. There was a time in 2023 when I couldn't clear the CAPF exam prelims itself by just 2.5 marks. I was literally shattered. Mhm. For 2 days, I was just sitting in my room and thinking that what should I do next? Yeah. I could only see a black light at the end of the tunnel, not a bright light actually. No. But you need to be focused. I think so. That is more important. You need to be goal driven. प्रतीक, कभी आपने अपने आप को टाइम दिया कि मैं इतने साल ट्राई करूँगा और इतने अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, देन आई विल डू सम प्लान बी, एंड व्हाट वाज़ योर प्लान बी? Yeah. Ma'am, it is very important to have a plan B, especially with respect to the nature of prelims nowadays. UPSC is now trying to discourage students, according to me, to just consider UPSC as their sole target. They Mhm. want students to do pursue their UPSC aspirations as well. बट आप कुछ और भी साइड बाय साइड करिए। यू शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन द नेशन कि आप यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएं हमारी सोसाइटी पे। जी, आपने क्या किया प्रतीक? मोर स्पेसिफिकली? सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोचिंग इन न्यू दिल्ली फॉर 1 ईयर, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मास्टर्स परस्यू करूँगा इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज़ ज्योग्राफी से मेरा थोड़ा ज़्यादा लगाव भी था। राइट। हाँ, तो उसके बाद मैंने मास्टर्स की लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आई केम बैक टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोचिंग। उसके साथ मैंने नेट जेआरएफ दिया और उसमें क्वालिफ़ाई करने के बाद मैंने पीएचडी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। वहाँ पे क्रेट नाम का एग्ज़ामिनेशन होता है, मैंने उसको क्लियर किया। आई सिक्योर्ड 7th रैंक इन दैट एग्ज़ामिनेशन एज़ वेल। So currently, I'm also enrolled into PhD under Shri Anupam Pandey sir, who is my research guide. So आपको प्लान भी अपने हिसाब से कंसिडर करना है। इट कैन बी टीचिंग लाइन, इट कैन बी सम एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, गोइंग बैक टू कॉर्पोरेट फील्ड, व्हाटएवर यू लाइक। थोड़े टेंजिबल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एक पर्सन पढ़ाई तो कर ही सकता है, पढ़ाई नेवर एंड्स। यू कैन यस। डू मास्टर्स, देन यू कैन डू पीएचडी, देन यू कैन डू अनदर पीएचडी, फिर आप टीचिंग प्रोग्राम में। लेट्स से अगर एक पर्सन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है कि मुझे साइड बाय साइड थोड़े बहुते पैसे भी कमाने हैं, जिससे कि मैं अपने एक्सपेंसेस भी उठा सकूँ, प्लस थोड़ा घर भी सपोर्ट कर सकूँ। इन दैट केस उस बच्चे के पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं अलोंग साइड प्रिपेयरिंग फॉर
the exam? ओके। सो माय फिलॉसफी ऑलवेज सेज मैम कि आपको जो भी अपना प्लान बी करना है, इट शुड समहाउ बी लिंक्ड टू योर प्लान ए। Mhm. It should never be discrete from your plan A, because that will just lead to bifurcation of your focus. Mhm. अब जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्लान ए में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्लान बी में कुछ एकदम ही अलग डिफरेंट रूट ट्राई कर रहे हैं। तो इफ दे आर कंफर्टेबल विद दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Right. बट आप कोई ऐसा अगर प्लान भी चुनिए, जैसे कि मैंने मास्टर्स की ज्योग्राफी में और मेरा ऑप्शनल्स भी सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी है, Mhm. तो इट हेल्प्ड मी ओवर देयर। मेरी ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन स्ट्रांग हुई, मेरी टीचिंग लाइन में भी एक प्लान भी ओपन हो गई। नेट जेआरएफ क्रैक करके आपको स्टाइपेंड भी मिलने लगेगा, आप रिसर्च कर लेंगे, आपको फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटीज है पोस्ट डॉक की। Yeah. कुछ ऐसा ट्राई करिए। नो, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। जो आप कर रहे हैं उसी के साथ ही रिलेटेड कोई फील्ड करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ऐसे एडवाइस दे सकती हूँ कि बच्चे ट्यूटरिंग कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ समबडी फ्रॉम स्कूल जिसको लेट्स से ज्योग्राफी में हेल्प चाहिए, जिसको मैथ्स में हेल्प चाहिए, तो कोई एक ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है एंड दे कैन से कि आई लव टू टीच, एंड उससे क्या होता है एज़ अ स्टूडेंट, द मोर यू टीच द मोर यू लर्न। तो उससे आपके भी एब्सोल्युटली। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड देन इट्स अ पेइंग अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल। एंड थोड़ा-सा घर के बाहर निकल के इंटरैक्शन भी होगा दूसरों से, तो माइंड भी रिफ्रेश रहेगा। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कहा कि मैंने सीएपीएफ की तैयारी स्टार्ट कर रही, बट यूपीएससी भी कहीं न कहीं माइंड में रहा होगा। हाउ डिड यू चूज़ कि मैं क्या करूँ, कैसे प्रायोरिटाइज़ करूँ अपने लाइफ़ के गोल्स को और कैसे लर्निंग्स प्रायोरिटाइज़ करूँ? बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ डिड यू चूज़ मैं कौन-सा एग्ज़ाम दूँ पहले? सो मैम, चूजिंग वाज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मैंने पटवारी तक का पेपर दिया हुआ है एक बार, और उसकी भी मेंस मैंने लिखी है। तो आई आई डोंट बिलीव कि कोई भी जॉब या कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा होता है। हुँ, हुँ। आपको हर एग्जाम एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट देना चाहिए। आजकल मुश्किल से 100 से 500 रुपए के बीच मैक्सिमम फॉर्म्स आते हैं एग्जाम्स के। हुँ। आई थिंक सो मोस्ट स्टूडेंट कैन अफोर्ड इट। आप एक बार सारे एग्जाम देके देखिए, उसका नेचर देखिए, उसके पीवाईक्यूज देख लीजिए 1-2 साल के। फिर डिसाइड करिए कि कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके सिलेबस या जिनके जो एरियाज ऑफ फोकस हैं वो अप्रॉक्सिमेटली सेम है या ओवरलैपिंग। सो आई फाउंड कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ का जो एग्जाम है, दोनों करवाता है और दोनों के सिलेबस मोस्टली सेम ही है, हुँ। और दोनों में कोर रिक्वायरमेंट्स भी मोस्टली सेम है। जैसे आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, दोनों में रिक्वायर्ड है। इंटरव्यू भी आपका वहीं डोलपुर हाउस में होना है, सेम मेंबर्स रहेंगे, सेम तरह की प्रिपरेशन डैफ में करनी है आपको। हाँ, इसमें सीएपीएफ में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू बी मोर फिजिकली फिट बिफोर द इंटरव्यू इटसेल्फ, बिकॉज़ एक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यूज़। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए 3 महीने मोर देन इनफ होते हैं। मैंने खुद 8-9 केजीज़ 7-8 केजीज़ वेट लूज़ किया। आई डिड माय 75 हार्ड चैलेंज आल्सो, वाओ! इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर अंकित बैनपुरिया, हू इज़ वेरी फेमस। तो अमेजिंग। थैंक यू। प्रतीक, आई वुड लाइक टू ऐड कि फिटनेस इज़ शुडन्ट बी एन आफ्टर थॉट। आई थिंक ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे डेफिनिटली। थे कि पढ़ाई के साथ-साथ रोज़ 1 घंटा निकालना ही चाहिए। किसी को अगर कोई हॉबी है, तो वो हॉबी 1 घंटा, सिर्फ़ 1 घंटा तो देना ही चाहिए, एंड स्पेशली सीएपीएफ एग्ज़ाम में जहाँ पे लाइफ लॉन्ग इट्स अ बॉडी बेस्ड वर्क प्रोफाइल। अगर आप फिट हैं, तो ही आप सक्सेसफुली इस जॉब में अपना काम कर सकते हैं। एंड इफ दैट्स समबडी गोल, तो आई वुड से टू कैंडिडेट्स कि साथ ही इसको भी सोचें, सो दैट आपकी प्रिपरेशन के साथ-साथ यू आर आल्सो गेटिंग फिजिकली फिट। तो आपने कहा कि आप दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे थे, देन हाउ डिड यू रियलाइज़ कि माय स्ट्रॉन्ग सेट इज़ लुकिंग मोर इन सीएपीएफ? एट व्हाट पॉइंट? व्हाट वाज़ दैट पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू सेड दिस इज़ इट, आई थिंक दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू मेक माय लाइफ इन? राइट। मैम एक्चुअली ऐसा मुझे लगा कि सीएपीएफ का एग्ज़ाम जो है, वो उसका प्रीलिम्स कंपैरेटिवली मेरे को ईज़ी पड़ेगा। हुँ। Because in CAPF paper 1 and paper 2 cumulative marks are added as prelims. हुँ। वहीं सिविल सर्विसेज में इशू ये है कि मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा था। कभी 4 नंबर से रुक जाता था, कभी 3 नंबर से रुक जाता, कभी 10 नंबर से रुक जाता था। और उस पेपर का नेचर 2023 से ऐसा हो गया मैम कि आप अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं एंड यू आर गिविंग प्रीलिम्स फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है। इट हैज़ बिकम मोर ऑफ लक बेस्ड दैन हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू मी, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, but that's the reality of things. That's what UPSC is doing currently and you have to acclimatize accordingly. तो मैंने सोचा कि आई शुड फोकस अपॉन सीएपीएफ पेपर 1 पेपर 2, उसमें मेरी क्लियर करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। फॉर्चुनेटली 2024 की साइकिल में मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ इन सीएपीएफ एंड देन आई कुड सेल थ्रू इन द फाइनल मेरिट लिस्ट।
तो क्या प्रीलिम्स में की डिफरेंस है बिटवीन यूपीएससी एंड सीएपीएफ? एंड हमने कहा कि लक बेस्ड है, तो कैसे कोई समझे कि लक फैक्टर को अवॉइड करके अपने हार्ड वर्क के थ्रू इस पेपर में आगे बढ़ा जाए? आपके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में क्या डिफरेंस आपने देखा पेपर 1 में यूपीएससी और सीएपीएफ के बीच में? ओके। मैम आई थॉट कि 2024 के पहले जो सीएपीएफ के प्रीलिम्स के पेपर होते थे, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे काफ़ी डायरेक्ट होते थे और इसी वजह से जो पेपर 1 की कट ऑफ थी वो भी काफ़ी हाई जाती थी। अराउंड कभी-कभी तो 138, 137 तक भी गई हुई है इन 250 मार्क्स ऑफ कोर्स। तो डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए और जाइए और एग्ज़ाम में आपके अराउंड 45% मार्क्स आ जाएँगे पेपर 1 में। पेपर 2 में आप डिसेंटली पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, अच्छे से आंसर करिए और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बट इन सिविल सर्विसेज व्हाट आई सॉ इज़ कि पेपर में जो ऑप्शंस हैं, वहाँ पे गेम है असली। वहाँ पे ऑप्शंस को ऐसे फ्रेम किया जा रहा है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी टफ लगने लगेंगे। फॉर एग्जांपल 2023 में यूपीएससी ने स्टेटमेंट और सेशन बेस इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज में। पेयर वाले क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए कि हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 पेयर आर करेक्ट, 2 पेयर आर करेक्ट। ऊपर से यूपीएससी में आंसर कीज़ आपको भी पता है 1 साल बाद आती हैं। हुँ, हुँ। So it is very hard for candidates to analyze their issues and mistakes if questions are so vague. वेरी You ट्रू। don't know the answers also. तो आप एनालिसिस करके कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, दैट इज वेरी टफ। इन सीएपीएफ 2024 व्हाट आई सॉ इज कि धीरे धीरे प्रीलिम्स का लेवल अब सीएपीएफ में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हुँ, सो यू हैव टू फास्टन योर सीट बेल्ट। 2025 का पेपर आसान नहीं होने वाला है। इस बार का कट ऑफ काफी कम गया है पेपर 1 का। हुँ, हुँ, इनफैक्ट इट इज इन 90s, लेट 90s। हुँ, हुँ, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट टफर विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी एंड ऑल। हुँ। आपके पास इंफॉर्मेशन का एक समुद्र है, आपको बस कोशिश करना है कि आपको सेल थ्रू करना है। वेरी नाइसली सेड प्रतीक। आपने इतनी स्ट्रैटेजी रखी, मेजरिंग कंपेयरिंग योर स्ट्रेंथ विद द एग्जाम स्ट्रेंथ एंड फाइनली स्ट्रैटेजाइजिंग कि ये एग्जाम मेरे लिए अच्छा है। ये आपने बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी है फॉर एनीबॉडी गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। आपने चैट जीपीटी का मेंशन किया। अब 2025 इज नॉट सेम एज द लास्ट 10 इयर्स। आजकल की जनरेशन में लोग एआई को पहले यूज करते हैं गूगल सर्च करने से पहले। ऑफ तो कोर्स। आज की एज में जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप स्किल्स आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू थिंक कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन है, हाउ कैन एआई इन्फ्लुएंस दैट, या फिर बच्चे एआई को यूज करके कैसे इस एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं? एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको लगता है कि क्या एग्जाम का पैटर्न चेंज होना चाहिए, बिकॉज इन दिस एज वेयर क्रिटिकल थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू कैन रिटेन इन योर हेड, व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर एग्जाम्स लुकिंग लाइक? एब्सोल्युटली। मैम, विद द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, अब ह्यूमंस की जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो गए हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल क्वोशंट अभी भी कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। एज अ फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट हमारे अंदर यही क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। जी। बी इट इन द प्रीलिम्स और बी इट इन द इंटरव्यू। आपको ऐसे एसआरटीज़ दिए जाएँगे जिसके अंदर आपकी ये कॉम्पिटेंसेस चेक की जाएँगी कि हाँ, आप ह्यूमन साइड ऑफ थिंग्स को एनालाइज़ कर पाते हैं। जी। सो इन फ्यूचर आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी इंट्रोड्यूस कर सकता है जिसके अंदर प्रीलिम्स में ही एसआरटीज़ आएँ और बेस्ड ऑन द ऑप्शंस और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स यू विल बी गेज्ड। जैसे जो सबसे परफेक्ट आंसर हो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, जिसको एवरेज हो तो उसको हाफ मार्क्स मिले। दैट कैन बी अ साइड ऑफ थिंग्स। आई पर्सनली यूज these artificial intelligence like chat gpts and all in my interview preparation. What I did was there was a group in telegram in which all the students who gave the interviews or mock interviews, they sent their transcripts. मैंने उस ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी किया, चैट जीपीटी में डाला, उसके आंसर मैंने बोला कि आंसर दे दो। उसने मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर्स को फ्रेम किया। मैंने उसको कॉपी करके एक अपने पीडीएफ में बना लिया। सो देयर इज़ अ पीडीएफ ऑफ प्रतीक वर्मा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स ऑन माय डेस्कटॉप दैट इज़ ऑफ 297 पेजेस इन व्हिच आई गॉट द जिस्ट ऑफ ऑल द पैनल मेंबर्स कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, कौन-सा चेयरपर्सन किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कौन ऑप्शनल्स पे फोकस करता है, कौन आपके हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस करता है। आप ऐसे ही इसको यूज़ करिए। यू इट कैन आल्सो बी अ बेन बट यू हैव टू यूज़ इट इन सच अ वे कि आपके लिए बेन हो जाए।
माय गॉड! आई मीन ये तो गेम चेंजर हो गया बिकॉज़ Yeah. अंटिल लास्ट ईयर कितने ही लोग इंटरव्यूज़ देते थे, कितने ही ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे एंड इतनी प्रॉब्लम होती थी कि लोग वन बाय वन देख रहे हैं। 2025 इज़ द ओनली ईयर जहाँ पे आप सारी ट्रांसक्रिप्ट्स लेके अपलोड कर सकते हैं एंड बी इट चैटजीपीटी आजकल नया टूल आया है नोटबुक एलएम, आप सारी Yeah. ट्रांसक्रिप्ट्स नोटबुक एलएम पे अपडेट कर सकते हैं एंड यू कैन से कि दिस इज़ हाउ आई से थिंग्स, दिस इज़ मी एज़ प्रतीक, हाउ विल यू आंसर? एंड देन यू विल गेट द आंसर्स। सो 2025 में जो भी इसको सुन रहा है, यू कैन यूज़ एआई टू लिसन टू पास्ट यूट्यूब वीडियोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी ये वीडियो यू कैन टेक द लिंक एंड आप इसको नोटबुक एलएम में डाल के पूछ सकते हैं कि व्हाट वुड प्रतीक वर्मा से अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ। सो दैट्स अ ग्रेट कॉल आउट प्रतीक, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं प्रतीक? हाउ वुड यू सपोर्ट योर पेरेंट्स एंड आपके पार्टनर इफ देयर इज़ एनी व्हाट आर योर प्लान्स फॉर लाइफ? Definitely, ma'am. Everybody should have plans, I guess. I also have plans, but currently I am thinking that I should also give civil services. I am aiming for IAS or IPS. In that, I won't feel any civic preference after that if I get the opportunity, because else I am very satisfied with the rank and the force that I'll get into. Most probably it will be CISF. That is because I love public interaction. मेरा ये पैशन रहा है कि लोगों से बात करना, उनकी हेल्प करना, और सीआईएसएफ आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देती है। I have immense respect for all the other four forces and the paramilitary forces. I would have been more than happy if I would have got those also. But yes, that was my first choice. Coming upon my parents, I think so they were the only one who stood beside me through the hardships, and always there was a sense of satisfaction in me whenever I achieved something. Be it the day I called my father after getting placed into Vedanta कि अब घर में 3 कमाने वाले हो गए हैं। जी, सच अ प्राउड और मोमेंट फॉर या एवरीबॉडी। वेरी वेरी अनफॉरगेटेबल। एंड जब पीडीएफ में नाम आया सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाली रैंक देखी, तो फिर मैंने कहा अब घर में 2 वर्दी वाले हो गए हैं, बिकॉज़ माय मदर इज़ आल्सो सर्विंग इन यूपी पुलिस एज़ रेडियो सब इंस्पेक्टर। ओह वाओ! दैट इज़ सच एन इमोशनल मोमेंट। डेफिनिटली। तो आपके अकॉर्डिंग देयर इज़ एन अनसेड हायरार्की, अभी भी सिविल सर्विसेज को सीएपीएफ से थोड़ा-सा ऊपर का दर्जा माना जाता है। इसीलिए यू आर आल्सो ट्राइंग फॉर दैट सिविल सर्विसेज स्टिल? मैम, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट विद द रिसेंट जजमेंट दैट केम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब सीएपीएफ को भी बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस की तरह ही है। ऑल्दो ये एक पुराना जजमेंट है, बट इसको और अच्छे से एलैबोरेटली दिया गया है। So now CAPF would also be able to enjoy the perks that organized group A service OGAS had. So things are going to improve in the future. But few issues that I think should be addressed by the Honorable Supreme Court or our parliamentarians कि अभी भी जो CAPF में टॉप लीडरशिप होती है वो यूजुअली आईपीएस को दे दी जाती है। हुँ, हुँ। So these sort of deputations led to demoralization in armed forces like CAPF and paramilitary forces, जो कि I don't think it is required. Our men, our female members who are joining from the lower ranks, getting the experience of CAPF forces, knowing the root causes and issues, should be given the opportunity to become the Director General or ADG. तो ये एक इशू है। और सीएसई का मैम ऐसा है कि इट हैज़ बिकम अ ब्रांड नाउ। उसको स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूँ ही नहीं कहा जाता है। ऑल्दो सीएसई के अंदर लोगों को पता नहीं है, लोग आजकल सब यही सोचते हैं कि सीएसई मतलब आईएएस, आईपीएस बनेगा, बट उसमें ग्रुप बी सर्विसेज़ भी हैं, आईआरएस भी है, आईडैस भी है। तो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन योर रैंक। इन फैक्ट इन सीएपीएफ अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट कमांडेंट ही बनेंगे, चाहे आपकी लास्ट रैंक ही क्यों ना हो। हुँ, हुँ। वाओ! सो दिस इज़ अ मेजर थिंग दैट पीपल डोंट नो, दे नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ। So for all the people listening, go back 20 seconds and listen again to what Prateek said because हमें ये सब नहीं पता कि ये रैंकिंग कैसे वर्क करती है। प्रतीक इतनी इतनी इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के बाद भी व्हाई आर यू गिविंग प्लानिंग और एस्पायरिंग अगेन फॉर सिविल सर्विसेज? दिस इज़ बिकॉज़ मैम जैसे अभी करंट सिचुएशन है कि हाँ, टॉप रैंक्स पे आईपीएस ही आएँगे। हुँ, और who in this world should never aspire for bigger goals. I don't think कि there is anything wrong if you are trying for something bigger in life. And with getting into civil services and these two services, IAS and IPS only, I can do better things because the domain and the mandate of your work is larger compared to currently assistant commandants and the future ranks that I would be getting in CAPF. हुँ, So I'll be doing my duty with full intensity.
In fact, I'm currently trying to engage people through my social media, Instagram, and everywhere. I write very much on Quora. I have good set of followers and views over there, more than a million views. So I try to make aware people about these forces as well. It's a matter of pride for me to become a part of it. But aspiring for something bigger is, I don't think there is anything wrong in it. प्रतीक, एक फन क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज़ यू आर सच एन एस्पायरिंग कैंडिडेट एंड यू आर सो एम्बिशियस। जब 61 रैंक आई होगी तो दुःख तो बहुत हुआ होगा कि रैंक 1 और 10 और 15, 20 क्यों नहीं आई? तो कहाँ कमी रह गई? मैम, जस्ट सेइंग दैट कि हाँ, गिलास आधा भरा मैं देखता हूँ, आधा खाली नहीं देखता हूँ। तो आई वाज़ इन फैक्ट वेरी हैप्पी कि कम से कम मेरी डबल डिजिट में रैंक आ गई, बिकॉज़ एज़ आई हैव सेड कि मेरे जो पेपर 1 में मार्क्स रहते हैं, हमेशा बहुत ऑन बॉर्डर लाइन ही रहते हैं। आई नेवर हैव बीन अ गुड कैंडिडेट्स इन ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन्स, यू मे बी नोइंग ऑलरेडी आफ्टर इंटरैक्टिंग फॉर दीज़ मेनी मिनट्स। तो हाँ, बट आई एम गुड एट आंसर राइटिंग, मैंने वहाँ से कवर अप किया होगा होपफुली। और माय इंटरव्यू आल्सो वेंट वेरी वेल, द बोर्ड वाज़ वेरी प्लीज्ड विद माय परफॉर्मेंस। सो आई गेस मेरी डबल डिजिट रैंक वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी, और 61 रैंक से मुझे जो फ़ोर्स चाहिए थी, होपफुली मुझे वो मिल जाएगी। और आई डोंट थिंक कि टॉप 10 में आने से आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि आपको रगड़ा कम लगेगा या आपको 2 राउंड कम भागने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही अकेडमी में जाएँगे, हम सब एक ही तरह की ट्रेनिंग करेंगे और एक ही तरह के काम करेंगे, नेशंस की सर्विस में रहेंगे। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। आई डोंट सी द ग्लास हाल्फ लाइक एम्प्टी। एक्सीलेंट। एंड रैंकिंग से डिसाइड होता है राइट कि सीआईएसएफ मिलेगा या बीएसएफ? सो सीआईएसएफ वाज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज़। वाज़ देयर अ रीज़न फॉर दैट? Yeah, I would like to clarify, ma'am, that there is a form called DAF, Detailed Application Form, यस। in which you have to fill your force preference. So, it can be very possible that many candidates in the top 10, top 50 have also filled the CRPF, ITBP as their first choice. हुँ, हुँ। So, it completely depends कि आपको जीवन में कितना थ्रिल चाहिए, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, क्या किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। हाँ जी। बहुत लोग एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हैं, सो दे लाइक टू गो इनटू बीएसएफ एंड सीआरपीएफ बिकॉज़ दीज़ 2 फोर्सेस आर क्लोज़र टू आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री। बट जैसे मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहे हैं, जो लाइफ में सिविल सर्विसेज की या लाइकवाइज एग्जाम्स की तैयारी किए हुए हैं, तो थोड़ा स्केप्टिसिज्म होता है कि हुँ, हम बीएसएफ में उतना अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे कि नहीं। ट्रेनिंग में आप फेल हो जाओगे तो आपका एग्जाम निकालने का कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप एकेडमी के बाहर आ जाओगे इंजरी लेके। हुँ। तो आई एम नॉट सेइंग सीआईएसएफ की ट्रेनिंग ईज़ी होगी, बट येस कंपैरेटिवली जो भी मैंने पढ़ा है, अपने सीनियर से पूछा है और जो भी इसका वर्क प्रोफाइल है, मेरे लिए ज़्यादा सूट करता है। Excellent. It sounds like आपने अपना पूरा होमवर्क करके रखा है. You know what kind of adventure you're getting into and the life ahead of you. That's such a great thing to have. And for people listening, always research the kind of job that you're going to do, because ultimately you are serving your nation, but it is you, your job and your life. So आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है. तो it's important कि आप ऐसे इंटरव्यू सुने, ऐसे लोगों से बात करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, या फिर अगर आप किसी को नेक्स्ट किसी का इंटरव्यू सुनना चाहते हैं हु यू रियली लुक अप टू, प्लीज ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताएं सो वी कैन गेट दैट स्पीकर फॉर यू नेक्स्ट टाइम. बट बैक टू प्रतीक. प्रतीक, आप कितने लॉजिकल एंड वेरी रैशनल एंड प्रोसेस ओरिएंटेड साउंड होते हैं. तो आपने कैसे अपना स्केड्यूल ब्रेकअप किया प्रिपरेशन के लिए? तो पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर पेपर 2 पे जाएंगे. ओके। मैम, बीइंग एन इंजीनियर, सबको पता है इंजीनियर कैसे पढ़ाई करता है। तो हम हमेशा से प्रोसेस ओरिएंटेड रहे हैं और साथ में बहुत ही स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। इंजीनियर्स कभी भी हार्ड वर्क में बिलीव कम ही करते हैं, स्मार्ट वर्क से ही हमारी तैयारी होती है। सो आप अगर एक आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं 8 घंटे की नौकरी करता था, तो रिज़ाइन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा 8 घंटे जैसे मैं नौकरी करता था, वैसे ही मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। आई विल ट्रीट दीज़ 8 आवर्स एज़ माय जॉब। मुझे 8 आवर्स दिन में पढ़ाई के लिए निकालने हैं एनी हाउ। संडे के अंदर मैं 1 हाफ़ फ्री रखता था अपना, जिसके अंदर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चाय की टपरी पे जाता था, घूमता-फिरता था, मोमोज़ खाता था, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आपको लाइफ़ को एन्जॉय करते रहना है, नहीं तो ये प्रिपरेशन में आपका सबके साथ साथ छूट जाएगा। अंत में आप अकेले खड़े रह जाएँगे, जो कि आई वोंट एडवाइस आपको करना चाहिए। यू आर अ ह्यूमन, यू शुड बिहेव लाइक अ ह्यूमन, यू आर अ सोशल एनिमल। अब बाकी 8 आवर आपने पढ़ाई कर ली, 8 आवर आप सो लीजिए या जो भी है, और बाकी का जो टाइम बचा है उसके अंदर आप कोशिश करिए कि थोड़ा-सा लोगों से सोशलाइज़ कर लिया, कोई चीज़ आपकी पेंडिंग है, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर काम है, खेलना-कूदना है, फिज़िकल एक्टिविटी, आप उसको करिए। आई एम श्योर अगर आप 1 से डेढ़ साल इतनी मेहनत कर लेंगे विथ कंसिस्टेंसी,
तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकती है। मे बी आप जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो वो आपको अचीव ना हो, आपका फर्स्ट एम आपको ना मिले, बट यू विल बी देयर एट अ गुड पोज़ीशन समवेयर इन द लाइफ। दैट्स व्हाट आई बिलीव। Excellent. Yes, Add there with was the also a question about paper 1, paper 2. I'll come to yes. that. सो पेपर 1 में मैम स्ट्रैटेजी ऐसी रही है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं, बी इट ईपीएफओ, बी इट्स लाइक जियो साइंटिस्ट, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, जितने पेपर कंडक्ट होते हैं यूपीएससी के, आपको सबको ईयर वाइज प्रिंट करवा लेना है, या आपको मार्केट में भी ऐसी बंडल्स मिल जाते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्व्ड आंसर पेपर ले आते हैं, ठीक है, वो उनके लिए सही हो सकता है, मेरे लिए वो वर्क नहीं कर रहा था। देन यू गेट इन हैबिट ऑफ स्पून फीडिंग। मैंने क्या किया, मैंने ब्लैंक क्वेश्चन पेपर जैसे ईयर वाइज थे उनको लगाना शुरू किया टाइम बाउंड मैनर में, स्टॉप क्लॉक लगा के। 1 घंटे 50 मिनट मेरा टारगेट रहता था। जनरली 2 आवर 10 मिनट हो जाता था, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, टाइम यूपीएससी कम ही देता है, पेपर लेंथी ही होते हैं। बट वही तो चैलेंज है, आपको धीरे-धीरे उस टाइम को कम करके विदिन 2 आवर्स लाना है, बिकॉज़ आपको ओएमआर भी फिल करनी है। उस पेपर को लगाइए, ऑप्शंस तक एनालाइज़ करिए। मैंने सारे पेपर्स के ऑप्शंस के भी शॉर्ट नोट्स वहीं पेपर में बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 21 पे कोई कोर्ट केस पूछा गया है, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने कोर्ट केस हैं, वो आप सारे लिख लीजिए, और ऑप्शंस में और जितने कोर्ट केसेस लिखे हुए हैं, सबके बारे में 1-1, 2-2 लाइन आप लिख लीजिए। देन रिवाइज़ देम। तो ये आपकी एक सेपरेट रिवीजन स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अब जैसे 40 दिन कुछ बचे हुए हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी किताबें खोल के दोबारा पढ़ रहे हैं। You should focus upon practice, time bound practice and revision of the previous years. कमिंग टू पेपर 2 मैम, पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखना शुरू करें। बिना पेन उठाए आपसे पेपर 2 नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि आपको विद इन 3 आवर्स मोर देन 3500 टू 4000 वर्ड्स लिखने हैं। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही टफ है, बिकॉज़ यूपीएससी ने इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया है कि ये दोपहर में पेपर कंडक्ट होगा, भरी दोपहर में कंडक्ट होगा। जब आप नाश्ता खाना करके अपना दोपहर का आएँगे, आपको नींद आ रही होगी, तब आपसे लिखवाएँगे। और पहला पेपर के डिमोटिवेशन से आप वैसे ही परेशान हैं, क्योंकि आपने 2-4 लोगों से बाहर मिलके ये डिस्कस कर लिया है कि इसका आंसर तो ए नहीं डी था। तो इट हैज़ बीन डिज़ाइन्ड सच कि वहीं से आप ये प्रेशर डालना शुरू कर रहा है यूपीएससी। इट इज़ डिज़ाइन्ड कि आपको तभी से चेक किया जा रहा है कि आप 135 लोग की नफरी को कमांड कर सकते हैं कि नहीं। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, लिखते रहना है, कुछ भी लिखिए। जो आपको अच्छा लगता है, पेपर में, न्यूज़पेपर में सुबह एक आर्टिकल आ गया, आप उसके बारे में 3 पेज लिख लीजिए। मन से, पढ़ के मन से अपने लिखिए। कोशिश करिए पीयर इवैल्यूएशन करवा लीजिए, कोई दोस्त हो आपका तैयारी कर रहा हो, जेन्युइनली मार्क्स दे दीजिए। हैबिट डालिए हैंडराइटिंग सुंदर करने की, पेपर को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करिए। कि पहले बहुत लोग ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं, ऐसे प्लीज़ अटेम्प्ट आप लास्ट में करिए। मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा, बिकॉज़ ऐसे में आप 3 पेज का स्पेस है तो 2.5 पेज भी लिख देंगे अच्छा कंटेंट, तो आपको एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन आपकी अगर एक रिपोर्ट राइटिंग या प्रेस ही छूट गई, तो उसमें 0 ही मिलना है। सो दीज़ आर स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे से पेपर फिनिश होगा। माय गॉड! जो आपने बात बोली कि आफ्टरनून में होता है, भरी दोपहरी में खाने के बाद आफ्टर एग्ज़ाम फन, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया बहुत सारे लोगों की। एंड गाइज़, Prateek is giving exactly what we need to hear, 'cause he's not sugarcoating, he's giving us exactly how we feel when preparing for exams. So प्रतीक, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली हमें सब बता रहे हैं, बट आई वांट टू चेंज समथिंग टू फन, सो आई एम गोना आस्क यू सम रैपिड क्वेश्चंस, रैपिड फायर, एंड यू डोंट हैव मच टाइम टू थिंक, सो यू हैव टू आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस, एंड जो भी आपके दिमाग में पहला आंसर आए, यू जस्ट हैव टू ब्लर्ट इट आउट। आर यू रेडी? ऑलवेज़ रेडी फेवरेट मैम। मूवी? खाकी, फेवरेट कलर? खाकी। फेवरेट बुक? एंड यू कांट से लक्ष्मीकांत। Favorite book? Too many favorite books always there. Uh, India history, I guess. इंडिया हिस्ट्री, हाँ, बीइंग अ ज्योग्राफी मेजर, you like history. Actually, I hated history, but for the exam, I had to like get into the this topic. Unfortunately, Very true. Okay, dream destination. Dhanushkodi. Okay. When are you getting married? When God plans. That was a trick question. Okay. Tell us what you want in life. Let's say you
get your civil services, which all the best. We hope you do get. At what point should a candidate feel, I have achieved very much, मैं खुश हूँ, लाइफ की रेस यहाँ खत्म होती है, and then you can start planning the next chapter in life? No, I think according to my own ideology, I think the race of life should never finish. लाइफ इज़ लाइक अ साइनोसॉइडल कर्व, कभी आपके अप्स आएँगे, डाउन्स आएँगे। अगर लाइफ की रेखा सीधी हो गई तो आपने वो मूवीज़ में देखा होगा कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो भी सीधी लाइन बहती है। तो देयर शुड ऑलवेज़ बी अप्स एंड डाउन्स। हुँ, वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ज़रूरी हैं, देन यू ट्राई टू एप्रिशिएट कि हाँ, बुरे टाइम में मैं कैसे अपने आप को बाउंस बैक कर पाया और हुँ, अच्छे टाइम में यू गेट द ह्यूमिलिटी कि हाँ, बुरे वक़्त भी आएँगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज़ ट्राई फॉर बिगर थिंग्स। कल शायद मैं सिविल सर्विसेज़ भी क्रैक कर लूँ होपफुली, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुश हो जाऊँगा कि अरे वाह! अब तो जो करना था जीवन में कर लिया। कुछ और करूँगा, कुछ सोशल वर्क स्टार्ट करूँगा। मेबी जो मेरी बेटर हाल्फ होंगी उनको एस्पायर करूँगा कि आप भी कुछ सोशल वर्क करिए, आपको जो अचीव करना है लाइफ में वो करिए। उनकी सक्सेस में मेरी सक्सेस होगी। अपने पेरेंट्स को इंस्पायर करूँगा कि हाँ, आपको जो करना है लाइफ में एन्जॉय करना है, इंडिया ट्रिप पे जाना है आप जाइए, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए। सो लाइफ शुड ऑलवेज़ बी हैपनिंग। इट शुड नेवर बी मोनोटोनस कि हाँ, अब जो अचीव करना था कर लिया, नाउ आई विल रिलैक्स बैक, सिट बैक। फिर तो हुँ। आई थिंक सो देन द सोल पर्पस ऑफ लाइफ विल बी डिफीटेड। वेल So सेड। always try for better, bigger things, better things. दैट इज़ ग्रेट। सो 2 2 कुत्ते और 1 बीवी और 1 घर और 2 बच्चे, वहाँ पे आपका ड्रीम नहीं सीमित है। यू आर No, never, लुकिंग टू never. बी ऑलवेज़ एक्टिव। आई विल ऑल Yes. ओनली स्लीप व्हेन आई डाई की फिलॉसफी रखते हैं प्रतीक। Of course, of course. Pratik, I have to ask you, आज की एज में startups has become a buzzword. Everybody wants to be a startup founder. And on the contrary, हम बात कर रहे हैं such a gruesome, difficult exam जहाँ पे बच्चे कई-कई साल प्रिपेयर करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि which is better? अगर एक पर्सन आज कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा है, क्या उसको स्टार्टअप मेंटालिटी रखनी चाहिए या उसको 3-4 साल अपने अपने लाइफ के डेडिकेट करके अपने कमरे में बंद होके पढ़ाई करने की फिलॉसफी रखनी चाहिए, व्हिच इज़ आई नो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल इंटरेस्ट एंड वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, बट कोई अगर गुमराह है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर गाइडेंस, तो क्या अच्छा है एंड वेयर इज़ मोर सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? Ma'am, I was also the overall coordinator, as I said, in the entrepreneurship cell of NIT रायपुर। तो मैंने वॉलंटियर से शुरू किया था फर्स्ट ईयर में। हम लोग पोस्टर-वोस्टर लगाते थे और ये सब काम करते थे छोटे लेवल वाले। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देयर इज़ अ हायरार्की, यू गिव इंटरव्यूज़ एंड फाइनली आई गॉट इंटो द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर पोज़ीशन। हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स बनाए, देखे, स्टार्टअप कैंप्स लगाए, अलग-अलग स्पीकर्स बुलाए। मैंने एक छोटी-सी चीज़ ऑब्ज़र्व की कि नाउ द यंग माइंड्स आर टिल्टिंग टुवर्ड्स द स्टार्टअप कल्चर। हुँ, हुँ। उनको गवर्नमेंट जॉब से जो इन्फैचुएशन था वो काफ़ी कम हो गया है, व्हिच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग फॉर इंडिया। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द गोल व्हिच वी शुड एस्पायर फॉर। हमको मोर यूनिकॉर्न्स बनाने चाहिए, हमको हुँ, सीड फंडिंग करनी चाहिए, राउंड रेज़ेस करने चाहिए, इन्वेस्टर्स बुलाने चाहिए और इसी से मैम देश ग्रो होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी। देखिए ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक कौटिल्य हैज़ आल्सो सेड कि फॉर रेजिंग एन आर्मी यू नीड द इकोनॉमी। सो हुँ, इकोनॉमी जब हमारी बनेगी 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, होपफुली 50 ट्रिलियन वन डे, तभी ब्यूरोक्रेसी कुछ कर पाएगी ना। हमको जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है, हमको जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस चाहिए फॉर सेविंग आवर कंट्री, डिफेंडिंग आवर कंट्री, वो कहाँ से आएगा? इसी पैसे से आएगा जो स्टार्टअप्स हमको एक इकोनॉमी में बूस्ट ला कर देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फैबुलसली वेल। We need more support from private sector, I guess, and red tapeism should be reduced a little bit. That's what I have observed. But things are getting better, and I am hopeful that it will be very good in the future coming 10 years. you heard it from Pratik, everybody. If you are looking for government civil services, that is the path. लेकिन अगर आप स्टार्टअप बनना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। You have so many options in 2025. Pratik, you were so phenomenal. आपने हमारे आंसर्स इतने ट्रांसपेरेंटली दिए एंड आई एम श्योर देयर इज़ वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जो एग्ज़ैक्टली आप जिस राह से गुज़र चुके हैं, वो इस राह से इस टाइम गुज़र रहा है एंड योर वर्ड्स आर गोना बी सो हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। Any parting words for us before you leave? Any advice you can share? And more importantly, if you were to give the same exam again, आप क्या different करते? तो ये 2 चीज़ें advice and something different you would have done. Firstly, coming to what I would have done differently, uh, I would say that I would have focused more upon paper one from start. हुँ, In like in the gist of things, I would say that मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होंगे मे बी, इसीलिए मेरा माइंड उस तरह से ऑप्शंस को समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है।
आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी गलती रिपीट मत करिए। हमेशा बॉर्डर लाइन पे अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो किस्मत से 1-2 क्वेश्चन अगर आंसर कीज़ में सही गलत हो गए, तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएँगे। तो प्लीज़ पेपर 1 पे और ध्यान दीजिए और पेपर 2 में मैं अपने तरफ से तो कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूँ, बट येस, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपना बेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि अब जैसे मैंने है तो मैंने अराउंड 400-500 रिफिल्स से आंसर लिख रखे हैं, क्योंकि पेन्स मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। आई हैव अ फोटो ऑफ दैट आल्सो। आई यूज्ड टू कीप दोज़ रिफिल्स विद माय सेल्फ। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मैं ऐसे ड्रॉवर खोल के देख लेता था कि अच्छा यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, सही है और मेहनत करनी है। आपको जो मोटिवेट करना है वो उस तरह से मोटिवेट होइए, पर स्टे फोकस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ह्यूमेन, बी काइंड विद पीपल। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि हमको किस तरह से मतलब मैम इसमें मैं कोई लास्ट वर्ड जैसे कंक्लूडिंग देना नहीं चाहूँगा, बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट अबाउट कंक्लूजन्स। मैं एक प्रीचर बन के अगर एक लाइन में सम अप कर दूँ चीज़ों को, तो इट वोंट बी गुड। जितना मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैम आपके साथ शेयर किया है, it is the conclusion in itself. It is my hard work of 10 years. This is the conclusion in which I can summarize कि लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। आपको गिरना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर चलना है, दौड़ना है, फिर गिर जाना है। इट इज़ ऑल नॉर्मल। आप अपनी लाइफ सोचते हैं टफ है, पर हो सकता है किसी की लाइफ आपसे भी टफ हो, आपके पेरेंट्स की लाइफ आपसे भी टफ है। सो ऑलवेज बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बट नेवर बी कंटेंट। ऑलवेज डिज़ायर फॉर मोर। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। Pratik, you sound like an old soul. You're so young, but your words of wisdom are priceless. Thank you so much. थैंक यू मैम।